السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا احمد سراج صاحب عمری کو کہ اتنا ویل مینج اور اتنا پرسکون اور اتنا ٹائم ٹیبل کے ساتھ یہ جلسہ جاری و ساری ہے کہ میں نے بہت کم جلسوں میں اتنا اچھا مینجمنٹ دیکھا ہے۔ بہت زبردست اور یہ سیکھنے والی بات ہے۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں خود اتنا ٹائم ٹیبل دیکھ کر اتنا ماحول دیکھ کر میں خود ڈرا ہوا ہوں، اس لیے میں نے میرے ٹائم کے لیے اسٹاپ واچ لگا دی مولانا، تاکہ اس سے اوپر میں ایک سیکنڈ بھی نہ جاؤں اور اس سے پہلے میں بات کو ختم کروں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں نے 1-2 منٹ اوپر بات کر دی تو کہیں جرمانہ نہ لگ جائے۔ بہرحال اس وقت میں جن علماء کرام اور جن بزرگان دین کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے، اتنے بڑے بڑے مقررین اور اتنے بڑے بڑے علماء اکرام کے بیچ ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ مجھے مدرسے کا وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ تقریری مقابلہ ہوتا تھا اور کھڑے کر دیا جاتا تھا تقریر دے کر کے دیکھے کون اچھی تقریر کرتا ہے۔ تو بس میرا یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ میں پہلی مرتبہ ہبلی میں آیا ہوں اور اس ادارے میں بھی پہلی مرتبہ آیا ہوں، حالانکہ مہمان کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے، لیکن میری چھوٹی سی شکایت ہے مجمع سے کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے، اتنے اچھے اچھے پروگرام، اتنی اچھی اچھی تقریر، مکالمہ پیش کیا گیا، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ آپ خاموش بیٹھے رہے۔ پتہ نہیں ہم کو خاموش بیٹھنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے جیسے کہ سب طرف سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس جلسے میں بھی آ کر ہم خاموش ہی رہے، جبکہ ہمارے بچے بلکہ آپ کے بچے ماشاءاللہ وہ جو مظاہرہ قرأت ہوا، مظاہرہ حفظ ہوا، کتنا زبردست کہ بچے آخری حرف سے وہ آیتیں پڑھ رہے تھے۔ جیسے دنیا میں انتاکشری کا ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ آخری لفظ سے گانے پڑھتے، ایک ماحول، ایک نیا ایک کنسپٹ حضرت مولانا نے ہم سب کو دیا۔ اس پر مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے سنجیدہ مجلس ہے، اس پر تالیاں نہیں بجا سکتے، لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ بولنے میں کیا حرج تھا؟ آپ بول سکتے تھے، بلند آواز سے بول سکتے تھے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یا اپنے ہاتھ اٹھا کر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے تھے، کرنا چاہیے تھی۔ بس یہ تھوڑی سی مجھے کمی لگی مولانا کہ اتنا اچھا پروگرام چلا، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ نہیں کہا۔ کم سے کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سارے پروگراموں کے لیے، ان بچوں کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ان بچوں کے لیے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بول دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اور میری بھی کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بول دیا کریں تاکہ میرا بھی حوصلہ بنا رہے۔ میں سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، جب تک اچھے کمنٹ نہیں آتے ہیں تو میرا بھی حوصلہ آگے والا ویڈیو بنانے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ بولتے رہیں گے تو مجھے بھی حوصلہ ملتا رہے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ 4 لائن کہہ کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا، رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا، حالانکہ یہ سر بھی اسی در سے ملا۔ لوگوں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا، لوگوں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا، مجھے تو مقدر بھی اسی در سے ملا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ مجھے واقعی میں یہ ادارہ دیکھ کر اور یہ عمارت دیکھ کر اور بچوں کی وہ تیاری دیکھ کر، ان کی تقریریں سن کر، میں یعنی وہ
अपने यानी वो अल्फाज नहीं पिरो सक रहा हूं मैं इतनी जल्दी कि मैं क्या, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपने वीडियोस में इसका तस्करा, इस जलसे का तस्करा, आप बच्चों के जो मेहनत का तस्करा इंशाअल्लाह मैं जरूर करूंगा और लोगों तक इस इदारे की बात जरूर पहुंचाऊंगा। आपको खुशी होगी कि आपका ये भाई सोशल मीडिया पर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ फॉलोवर हो चुके हैं और मुझे हर महीना 28 दिन के अंदर कम से कम 3.5 करोड़ लोग सुनते हैं। ये आप इसी ऐसे ही मदरसे का मैं तालिब इल्म हूं और ऐसे ही मदरसे की मैं पैदावार हूं। जो लोग ये समझते हैं कि जो कॉलेज से पढ़ेंगे या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे वही उस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप मेहनत करें और आपके मेहनत में शिद्दत हो, जुनून हो, तो आप मंजिल को पा सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 1.5 करोड़ फॉलोवर में से 40% हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जो मुझको फॉलो करते हैं और कई मर्तबा गैर मुस्लिम भाई बहन मुझे मिलते हैं, चाहे बाजार में, होटलों में, और मिलकर मुझे ये यानी इस तरह की दाद देते हैं कि आप एक मौलाना हो कि जिसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि और फिर मिलकर कई गैर मुस्लिमों ने मुझसे ये कहा कि आप जो बोलते हैं क्या ये कुरान में है, ये हदीस में है। यानी उनको ऐसा लगता है कि प्यार की बात, मोहब्बत की बात इनके कुरान और हदीस में है ही नहीं। उसकी वजह भी है कि हमारे नौजवानों के, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि देखिए ये जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं, ये कुरान नहीं पढ़ते, ये हदीस नहीं पढ़ते, ये बुखारी नहीं पढ़ते, ये तिरमिजी नहीं पढ़ते, ये हमको पढ़ते हैं, ये हमको पढ़ते हैं, ये हमको देखते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे मामलात को देखते हैं और इसी को दीन समझते हैं, इसी को इस्लाम समझते हैं, इसी को कुरान समझते हैं। और जो गलत फहमियां उनके जहनों में डाली गई है, मैं गलत फहमियां कह रहा हूं, जो डाली गई गलत फहमियां, लेकिन वो लोग जब हमसे मिलते हैं या हम में से अक्सर लोगों से मिलते हैं तो उस बात पर वो सिक्का लगा देते हैं कि जो वाकई में हमको समझाया गया है ये लोग वैसे ही है। हमने अपने जबान से, अपने मामलात से, अपने लेन देन से और अपने एटीट्यूड से ये साबित कर दिया है कि वाकई में हम वो वैसे ही है जैसे लोग समझाया जा रहा है। हमारे नौजवानों के आप स्टेटस देखिए, जो स्टेटस होते हैं ना, पता है ना आप लोगों को, अभी सोशल मीडिया से तो कोई ऐसा है नहीं कि जो दूर है, सब है सोशल मीडिया पर, सब डीपी लगाते हैं, सब स्टेटस रखते हैं, सब स्टोरी लगाते हैं। हमारे नौजवानों के स्टेटस आप देखेंगे ऐसे ही है, काट डालेंगे, मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे, हम मियाँ भाई है, शेर है, चीते हैं, भेड़िए हैं और ये है, वो है, फलाने फलाने। ये स्टेटस सारी दुनिया देखती है, ये स्टोरी सारी दुनिया देखती है। वो ये समझते हैं कि वाकई में ये लोग बहुत खतरनाक है, हालांकि दुनिया को इंसानियत का पैगाम हमने दिया, मोहब्बत का पैगाम हमने दिया, लेकिन हमारे नौजवानों के और हमारे स्टेटस बहुत खतरनाक होते हैं। वाकई में अगर जो इंसानियत वाली बातें हैं, मोहब्बत वाली बातें हैं, प्यार वाली बातें हैं, जो हदीस में है, जो कुरान ने हमको दिया है, वो अगर हम स्टेटस पे लगाए, उसको दुनिया में फैलाए, तो ये भी एक तरह की तबलीग है, ये भी एक तरह की तबलीग है। और तबलीग का सबसे बड़ा रास्ता अब ये हो गया है। बताइए, एक महीने में अगर मुझे 3.5 करोड़ लोग सुनते हैं, 3.5 करोड़ लोगों का इज्तिमा हो सकता है कभी, कितना खर्चा आएगा। लेकिन इसके जरिए हमारे हर एक के स्टेटस और स्टोरी के जरिए हम इस्लाम को फैला रहे हैं, या इस्लाम की छवि को बना रहे हैं, या इस्लाम की छवि को बिगाड़ रहे हैं। अजीब अजीब स्टेटस। एक नौजवान बिल्कुल दुबला पतला, गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई और बिल्कुल टी शर्ट में रहने वाला, एकदम ऐसा लाकर और ऐसा टी शर्ट पहनकर ऐसा लगता है कि जैसे टी शर्ट किसी खंबे पे लटकाया हुआ है। लेकिन उसका स्टेटस क्या था पता है? हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं।
ایک نوجوان اس کے پاس گھر نہیں, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, لیکن اس کا اسٹیٹس, ہم تو شیر ہیں, تمہارے ہوں گے گھر, ہمارا تو جنگل ہے, تو جنگل میں جاؤ رہنے کے لیے. ایک نے اسٹیٹس لگایا, ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے, عمرے سے آیا, اسٹیٹس لگایا, ابھی ابھی سدھرا ہوں, انگلی مت کرنا. یہ ایسے اسٹیٹس ہوتے ہیں, یہ حقیقت ہے, آپ کو بھی پتا ہے. تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں, ہماری لڑائی 2 چیزوں سے ہے. ہم کو بتایا جاتا ہے کہ فلانا دشمن ہے, یا فلانی تنظیم دشمن ہے, فلانا مذہب دشمن ہے, یا اس کے لوگ دشمن ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں اپنے. 2 سب سے بڑے محاذ پر ہم کو لڑائی لڑنی ہے, ایک تو جہالت سے اور دوسری غریبی سے. یہ 2 لڑائی ہم اگر لڑیں گے اور اس میں جیتیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. دیکھیے ہمارے پاس میں یہ ادارہ ہے, اتنا بڑا ادارہ, لیکن حضرت مولانا خود اس بات کو مانیں گے کہ کیا یہ ایک ادارہ کافی ہے ہماری امت کے لیے, کہ ایسے کئی ادارے ہونے چاہیے, ایسے کئی ادارے ہونے چاہیے جہاں پر دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہونی چاہیے, جہاں پر بچے ہمارے IAS IPS بننے چاہیے, سائنٹسٹ, ڈاکٹر, انجینئر, عالم بھی ہو, حافظ بھی ہو, قاری بھی ہو, مفسر بھی ہو, اور ساتھ میں وہ دنیا کا وہ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس میں ہو. یہ آج بنیادی ضرورت ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ ضرورت تھی, اب تو یہ مجبوری بن گئی ہے. اگر ہم کو دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا. لیکن ہم بہت آسانی سے دوسروں پر الزام دھر دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ کیا, انہوں نے بڑا منظم سازش کی, انہوں نے بڑا طریقے سے ہم کو پیچھے کیا. بے شک انہوں نے کیا ہوگا, لیکن ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے بے شک ہمارے ساتھ ظلم کیے, لیکن ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے پاس شادی کے لیے بجٹ ہے, ہمارے پاس ولیمے کے لیے بجٹ ہے, ہمارے پاس برتھ ڈے منانے کے لیے بجٹ ہے, ہمارے پاس شادی کی سالگرہ منانے کے لیے بجٹ ہے, ہمارے پاس ہر عید اور بقرعید کو گھومنے اور پھرنے کے لیے بجٹ ہے. لیکن تعلیم کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. جہاں تعلیم کی بات آتی ہے, سب سے پہلے مسلمان سب سے فری والی کون سی اسکول ہے اور فری والا کون سا مدرسہ ہے وہ تلاش کرتا ہے. اگر وہ نہ ملے تو پھر سب سے کم فیس والا کون سا مدرسہ ہے اور سب سے کم فیس والی کون سی اسکول ہے وہ تلاش کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ وہاں کی تعلیم کیسی ہے, وہاں کے ٹیچر کیسے ہیں, وہاں سے پڑھ کر بچے کون کس لیول پر گئے ہیں, اس اسکول کا ریویو کیا ہے. مٹکا خریدنے سے پہلے 10 بار اس کو بجا لیتے ہیں, لیکن اپنے بچے کا فیوچر اور مستقبل بنانے کے لیے جس اسکول جس مدرسے میں داخل کرتے ہیں وہاں پر نہیں دیکھتے کہ یہاں اس اسکول کی کیا ریویو ہے, مارکیٹ میں اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے. بس یہ دیکھتے ہیں کہ فیس کم ہے, بس ہو گیا. مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کے پاس مال دیکھنا ہے تو ان کے ولیمے آپ دیکھ لو, ان کی شادیاں آپ دیکھ لو, آپ کو پتا چل جائے گا. ہمارے یہاں کے لوگ نیک ہوں گے. میں ہمارے طرف کے ایک بات بتاتا ہوں, ابھی یعنی 4 یا 5 مہینے کی پہلے کی بات ہے, ہمارے یہاں ایک سیٹ نے اپنے بچے کا برتھ ڈے منایا تو تقریباً 1.5 کروڑ کے اوپر خرچ کیا, صرف برتھ ڈے کے اوپر 1.5 کروڑ روپے. ایسی ایک عمارت کھڑی ہو جاتی تھی کسی اسکول اور کالج کی. اس برتھ ڈے کے اندر مہمانوں کو اس نے فلائٹ کے ٹکٹس دیے اور بلایا. اب شادی ولیمے میں ابھی ہم لوگ وہاں بہت پتہ نہیں, یہاں کا مجھے بتانے میں پہلی بار آیا ہوں, لیکن ہمارے ادھر
20-20 कारें दूल्हे के आगे पीछे किराए की कर्ज लेकर लोन लेकर शादी और वलीमे कर रहे हैं, लेकिन तालीम के लिए बजट नहीं है, पढ़ाई के लिए बजट नहीं है, वहां पर खर्च नहीं करते। और फिर इल्जाम, उन्होंने हमारे साथ मुनज्जम साजिश की, उन्होंने हमको पीछे धकेला। पढ़ने को किसने पीछे धकेला आपको? 22 तारीख के बाद से इतना बड़ा हादसा मुल्क के अंदर या इतना बड़ा वाकया हो गया, कितने मुसलमानों की सफे मस्जिदों के अंदर बढ़ी, कितने नमाजी बढ़े। सिर्फ बहुत बुरा हुआ, अरे बहुत बुरा हुआ, वाकई बुरा हुआ, लेकिन हमने क्या किया? हमने मस्जिदों को आबाद किया? नहीं किया। हमारे नौजवानों ने तहैया कर लिया है। देखो पैसे कितने हैं। फलाने खान की जब फिल्में आती है, फलाने खान की जब फिल्में आती है, उसको सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर करने का जिम्मा हमारे नौजवानों ने ले रखा है। ऐसे नौजवानों की तंजीमें हैं। अभी फलाने खान का अभी फिल्म आई थी तो पूरा के पूरा थिएटर बुक कर दिया, क्योंकि हमारा खान है और उसकी फिल्म को हिट करना है, 1000 करोड़ के पार कर दिया। और हमारे मदारिस को और हमारे स्कूलों के लिए लोगों से चंदे मांगने पड़ते हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं। तालीम के मामले में यह हाल है। एक नौजवान अभी एक बहुत बड़े शो को जीत लिया, मुसलमान नौजवानों ने हंगामा कर दिया, सर पे उठा लिया, इतनी एकता, इतनी एकजुटता और इतना इत्तेहाद बताया कि जैसे वो नौजवान कोई सीएम पीएम बन गया। क्या हमारा रुख है हमारे नौजवानों का? किस तरफ हम जा रहे हैं और किस तरफ पूरी कौम को लेकर जा रहे हैं? फलाने ने साजिश की, बिल्कुल कर रहे हैं। जहरीले लोग हैं, मुल्क में जहर फैला रहे हैं, आपसी भाईचारगी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैं तकरीबन 3-4 महीने पहले मैं एक ओल्ड एज होम में गया, जहां पर कम से कम 45 माँ बाप, मुसलमान माँ बाप जो ओल्ड एज होम में है। मैंने हर एक की स्टोरी ली, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया जिसको लाखों लोगों ने देखा। वो माँ बाप, मैंने उनसे पूछा कि आपके क्या बच्चे नहीं है, क्या आप बे औलाद है? तो आप यकीन मानिए उन 45 माँ बाप में एक भी माँ बाप बे औलाद नहीं है, बे औलाद नहीं है। क्या फलानी तंजीम ने बोला था जाके कि माँ बाप को जाकर वहां ओल्ड एज होम में डालकर आओ? ये उनकी साजिश है, ये उनकी साजिश है। मस्जिदें वीरान पड़ी है, क्या उनकी साजिश है? हद होती है। आज इतनी तलाकें हो रही है, इतनी तलाकें हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुझे पता है, देखिए अगर आपके शहर में क्राइम कितने हो रहे हैं आपको घर बैठे पता नहीं चलेगा। आप पुलिस स्टेशन में जाकर एक दिन बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके में कितने क्राइम हो रहे हैं। जो लोगों की नजर ये समाजी जो वाकयात इंसिडेंट हो रहे हैं उसके ऊपर है, उनको पता होता है कि माशरे में क्या चल रहा है। हम देख रहे हैं, लोग हमसे राब्ता करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारे इनबॉक्स, हमारे ईमेल फुल पड़े हैं। इतनी तलाकें हो रही है। मैं ये कहता हूं कि अगर तलाक लेने के लिए अगर हॉल लेना पड़े, तलाक के लिए अगर शादी हॉल होता है ना, मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? अगर तलाक के लिए अगर हॉल लेना पड़े ना तो शादी के लिए हॉल नहीं मिलेगा। इतनी तलाकें हो रही है। पहले सुनने में मिलता था कभी कभार कि फलाने की तलाक की बात चल रही है, लेकिन साल भर की मुतल्लका, 6 महीने की मुतल्लका, 3 महीने की मुतल्लका, 1 महीने की मुतल्लका, यहां तक कि 1 रात की मुतल्लका भी मैं आपको बता सकता हूं। 1 रात की। मैं अभी पहली ही रात को दूल्हे ने अपनी बीवी को, नई दुल्हन को तलाक दे दिया। वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप। उसने घूंघट उठाया, घूंघट उठाने के बाद उसके बाल सिर्फ हल्के लगे,
हल्के लगे बाल, वो कमरे से बाहर निकल आया और आकर बोलने लगा कि तुमने देखा नहीं उसके बाल, ऐसी कैसी लड़की लाकर मुझे दे दी, उसके बाल हल्के हैं, आगे चल के उसके पूरे बाल निकल जाएंगे, वो तो गंजी हो जाएंगी, मुझे नहीं रखना है। उसी वक्त तलाक दे दिया। एक लड़का, आप अंदाजा लगाइए, ये किसी की साजिश नहीं है, ये हमारी साजिश है, ये हमारा है। उनको छोड़ो, वो तो बाद में आएंगे। हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी कौम की बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। एक लड़का जब तक 10 लड़कियां 12 लड़कियां नहीं देखता तब तक वो शादी नहीं कर रहा है। खुद के पास नौकरी नहीं है, गाल पिचके हुए हैं, आंखें धसी हुई है, रंगत का सही नहीं है, लेकिन लड़की उसको जन्नत की हूर चाहिए। हर एक को गोरी लड़की चाहिए, सफेद चमड़ी चाहिए, ससुराल अच्छा चाहिए। हमारे यहां एक नौजवान ने 38 लड़कियों को रिजेक्ट किया, 38 लड़कियों को, और फिर हम चिल्लाते हैं कि हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही है। अरे आप इस तरह से तलाकें दे रहे हो। हमारे यहां पर कोंडवा के अंदर 7 लड़कियां पकड़ी गई बुर्के के अंदर, बुरा काम करते हुए पैसों के लिए। उसमें 4 मुतल्लका और 3 बेवा थी। है रिवाज मुतल्लकाओं से और बेवाओं से शादी करने का। हमें बड़ा बुरा लगता है कि फलाने गैर मुस्लिम के साथ हमारी बेटी बैठ गई, उसके मोटरसाइकिल पर वो जा रही थी। अरे तुमने तुम्हारी मोटरसाइकिल पर उसको नहीं बिठाया, तुम्हारी कार में उसको नहीं बिठाया, तो वो बैठ गई उसके साथ। यानी आपकी ना कमाई है, ना आपकी नौकरी है, और फिर भी आप लड़कियां इस तरह की ऐसे तलाश करते हैं जैसे कोई वो बकरियां तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, बहुत सोचने की और गौर करने की बात है। ये मेरा वक्त खत्म होने को है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, और आखिर में मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 महाजों पर हमको लड़ना है। एक, जहालत से अपने बच्चों की तालीम का बजट बनाइए। नहीं है बजट, जैसे शादी वलीमे के लिए कर्जा लेते हैं, ऐसे पढ़ाई के लिए कर्जा लो। अपने बच्चों को हर फील्ड के अंदर मजबूत करो। हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे होने चाहिए। हम अपनी बहू जब प्रेग्नेंट हो जाती है, हामिला हो जाती है, तो लेडीज डॉक्टर तलाश करते हैं, लेकिन लेडीज डॉक्टर बनाने को हम तैयार नहीं है। हमारी बच्चियां भी पढ़नी चाहिए, हमारी बेटियां भी पढ़नी चाहिए, और हमारे बेटे ने भी पढ़नी चाहिए। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, पैसे कमाइए, पैसे कमाइए, मिलियनियर बनिए, बिलियनियर बनिए, करोड़पति बनिए, लखपति बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हज, रोजा, ज़कात, नमाज, इसके बाद सबसे बड़ी इबादत हलाल कमाई को कमाना है। आप कमाइए। अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो मदरसे कैसे बनेंगे, मस्जिदें कैसे बनेंगी, स्कूलें कैसे बनेंगी, कॉलेजेस कैसे बनेंगे? आपको कमाना पड़ेगा। हलाल की कमाई आप कमाइए, कमाई। पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसे की मोहब्बत बुरी चीज है। हमें मालदार बनना है, लालची नहीं। मेरे भाइयों, बच्चों को पढ़ाइए भी, और आखिर तक पढ़ाइए। कुछ बनाने की नीयत से पढ़ाइए, कुछ बनाने की नीयत से पढ़ाइए। 10वीं 12वीं करके उसको काम धंधे पे मत लगाइए, बल्कि उसको आखिर तक लेकर जाइए। और नौकरी के लिए मत पढ़ाइए, नौकरी के लिए मत पढ़ाइए, उसको पढ़ाइए आखिर तक। जहां तक वो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाइए। देखिए, इंशाअल्लाह एक वक्त हमने तो जिल्लत में जिंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं, लेकिन ये जो औलादें हमारी गोदों में हैं, इनके लिए अच्छा मुस्तकबिल बना कर जाओ। इनको पढ़ाओ, दीन की तालीम भी पढ़ाओ, दुनिया की तालीम भी पढ़ाओ, और ऐसे इदारों को सरों पर उठाओ। ऐसे उलमा के साथ अपना रब्त रखो जो ऐसे इदारे चला रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, लोगों के ताने भी सुन रहे हैं, फिर भी इदारे चला रहे हैं। ये चाहे तो अपना कारोबार करके अपने गाड़ी बंगले बना सकते हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को कौम के लिए वक्फ कर दिया है। इनकी कदर करो। अगर ये नहीं रहे तो आपको अपने बच्चों को, आपके बच्चों को स्कूल के गेट के बाहर से भगा दिया जाएगा।
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں نوجوانوں کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں, آپ لڑکیاں سلیکٹ کرتے ہوئے زیادہ آپ اس کے اندر چوچرا مت کرو. بہت برا حال ہو رہا ہے ہماری قوم کی بیٹیوں کا, ان کے مرتد ہونے کا, ان کے غلط راستوں پر جانے کا سب سے بڑے ذمہ دار یہ آج کل کے نوجوان ہیں. پیسہ کمائیے, پیسہ کمائیے, حلال کی کمائی کمائیے اور دین کا کام کریے اور آگے بڑھائیے, اپنے اداروں کو آگے بڑھائیے, اپنے اسکول بنائیے, اپنے کالج بنائیے. اور ویسے بھی آج کل لڑکیوں نے بھی اپنا ایک اسٹیٹس سیٹ کر دیا ہے. ابھی آج کی لڑکیاں بھی ہوشیار ہو گئی ہے, جب تک وہ اچھی کمائی والا نہیں دیکھ رہی ہے وہ شادی کے لیے ہاں بھی نہیں بول رہی ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کی لیلا نہیں تھامتی کسی غریب کا ہاتھ. مجنوں کو اگر عشق ہے تو پیسے کمانا سیکھے. السلام علیکم.